Hello, this is another fourth session today, and we'll be doing this special interview series today. As I mentioned, public holiday, taking time and using that for learning purpose. So we have another guest who just arrived, and we're waiting for Adnan from Whyalla, from South Australia. He's from Faisalabad, Pakistan, and he did KAPs, and now he's joining us very soon. So let's see, let's watch his story, and let's make us more aware about this program and learning. That will be useful for many who are actually attached with our groups. And so stay tuned. And as I said, the employer, when they look for interviews, they look for a few things. Like first thing is that if the person is compatible to work with the team, and if the compatibility that person can be friendly nature and easy person to go with the team members. And also the second thing which they look at, how that person will actually go with their customers. That's very important. So that is these two main things which actually connect a person. If they meet that expectation, then a person can get the job. We'll just wait for Adnan to join and let's listen his story. Assalamu alaikum, Adnan, how are you? Adnan, आपकी आवाज नहीं आ रही, देखिए जरा ऑडियो को चेक करें. आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गुड फ्राइडे और ईस्टर हॉलीडे की छुट्टी है. आज आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोग जो हैं वो आज अपनी जो प्रेयर्स हैं जुमे की वो करके आए होंगे. अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बताएं. आवाज़ आ रही है. वेरी गुड टू सी यू. थैंक यू वेरी मच. और यू लुकिंग वेरी फ्रेश. आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा नींद ली है आज और आराम किया. और कैसे हैं आप, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल. थैंक यू फॉर कमिंग, एंड दिस इज द लर्निंग पार्ट दैट वी वांट टू टीच अदर्स एज वेल, के आपके एक्सपीरियंस से कुछ हम बातें सीख सकें और दूसरों को बता सकें. कॉन्फिडेंस मिलता है दूसरे को और फायदा होता है उसके अंदर, और अल्लाह भी आपको सवाब देगा उसका डेफिनेटली. और थोड़ा सा हम पूछेंगे आपसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो इस बारे में कुछ हमें बताइए. Sure. First of all, I would like to thank you, and as well as I'll apologize because I couldn't make a special video, but I will introduce myself. That I graduated from Punjab University, which is in Lahore, and in 2018, and later on I got selected in government job. I did my government job like 2.5 years, and meanwhile, while I was doing the government job, I appeared for the KAPs exam and cleared all those steps. And then I was looking for a proper visa. And, during the COVID time, Australian borders were closed and KAPs has validity for almost 3 years, so I was a bit panicked. Oh, I should move within these 3 years, otherwise my KAPs will get expired. So yeah, I'm lucky that I got connected with you, and with reference of you, I got in contact with a very, very good employer. Yes. And and I'm here in Whyalla, which is a regional city in South Australia. That's right, yes. Almost 380 kilometers from Adelaide. That's right. Whyalla is a very good city, like have a good population. Background is like steel mining, so it's pretty steel mill. Yeah, it's on the beach. Yeah. It's got a big sea along the beach. Yeah, and Whyalla is like a hidden treasure. Like most of the iron ores and each and everything, get exported to all of the world. Yes. So I'm working as an intern pharmacist here in the Terry White Kmart, the pharmacy. And as you know, I've come like 3 to 4 months ago. And yeah, I've done my CPR as you recommended. Yes. CPR, first aid. Yeah. And then I did my immunization course. Oh, so wow. Okay. That's very good. Yeah. Thank you so much. So you are vaccinating?
Yeah, I'm Good. vaccinated. So Yeah, straight most of away, the time. that's what I Yeah. believe, that intern pharmacists should be vaccinating. And in last 3 years in Guild, I was saying, when intern pharmacists can do the vaccination, can you please push, Yeah. push, push the South Australian government? And Yeah. they have pushed it, and now is approved. So you can see Yeah. example, Adnan came from overseas, KAPs Yeah. class, and now he's a part of vaccinating team in the It's pharmacy as a really, pharmacist. really honored, and is you feel good, like you are participating in active role. The vaccination, being a vaccinating pharmacist is a pretty good job. We are starting our COVID vaccines, like booster shots, Okay, at the end of this month. So yeah, it's quite good learning as well. that's And great. as a pharmacist, I think if you are moving to Australia, you should be passionate about this. Yes, You should be up to date with your knowledge as well, and you have to accept the cultural, the shift. You yes, move from Pakistan and you move to Australia, you should respect the Australian culture that's and great. all those things, and your communication skills should be good. I think that's the main factor. I mean, we are moving to another country. Language is totally changed. No Urdu, no Hindi, no nothing. So you have to be good in your English speaking, That's right. because you are serving at the front. Every sort of customer is coming, and you have to communicate well. You have to understand what they are saying, and you have to give the good counseling points, regarding medication and each and everything. So being a pharmacist in Australia, it's mandatory to have a good knowledge, and Good being a knowledge, yeah, communication, very important. Or yeah, we can see that you keep talking in very good way of explaining things. So your communication skill is proven here, that you must be doing this job very passionately. As you said, yeah, passion is there. And yeah, also aging population, where aging yeah, population, exactly. people who are like 60 or 80 age year people, they're coming to your counter, and you Even more than 80, 85, 86, they are yes, getting flu vaccinations. They are coming for their medication scripts. So we have a lot of nursing homes here. So, a lot of elderly people, and sort of a- most of the So time we what is get the phone maximum calls. age person you have given a vaccination? What is the most elder guy that, if you Yeah, recall, was it 90-year-old, was it 100-year-old, was it, he what was it? was he was 86-year-old, Okay. and he came by himself in the pharmacy by driving a car. By And driving his own car. yeah, and we gave him fluad quad, which is Yes. recommended more than Special 65, vaccine with a special booster because on it it. contains ingredients like immune boosters. So Yes. yeah, and he was pretty well, healthy. And I was Wow. surprised, like people in Pakistan after 60, they would be like, you Life know, is finished. yeah. So yeah, So is that 80 is like a little bit elderly, but like they are active, they're driving yeah, vehicles, yeah, yeah, and they exactly. walk by themselves, they go to the bank, they do the pharmacy, grocery by themselves. Yeah. And I just recall when I asked this question, I remember that in Oruru, I did a vaccination for a person who Yeah. was 101-year old. Oh wow. So I was a little bit in like tense when I was going there. That was a AHK person, but I Yeah, was very happy that I did the vaccination for that yeah, 101-year-old person. I came back, he yeah, was happy, he was looking, he was talking to me. yeah, And yeah, so that was something which I feel very happy to say, that I yeah. did a vaccination for a 101-year-old old man. Yeah, that's really great. But the Yeah, youngest one, I think I did for 5 years as well. So that's the yeah, contrast age. Have you yeah. done kids as well? Are you doing the kids No, vaccine? I haven't done kids yet, Okay. but yeah, at other branch of pharmacy, the pharmacists are doing with the kids as well. That's good. Yeah. And anything special tip or burning thing that you think that you need to tell, which can change someone's life who's doing the KAPs or who's done the KAPs? Yeah, what I would say, as my experience is that Pakistan, like most of the pharmacists, they are not earning good. They Yes. are struggling. I left my government job. I was at a good post at grade 17. For most of the people would, dream for it. Yes. Like the Punjab Public Service Commission, it's kind of a competency exam. But while I was doing the job, I feel like I'm not, giving myself to the community for which I have studied 5 years. It was a rusting job, to be honest. There was no active role of pharmacist, as the pharmacist role in Pakistan is still they are struggling with the clinical side, with the active participation. So I would say that you just have to, take action. If someone is thinking that, oh, I would give KAPs,
he's not going to give. Just do So it. you have to take the action. Yes. And no matter what, just do hard, study well, Yeah. and it would be fine. It's not that tough, and it would be fine. And if No, you thank compare you. Yeah, if you please continue. Yep. Yep. And if you compare the reward after clearing your hard work, you study hard. I studied hard. I took like leaves from government job and I studied like 16 to 18 hours. I was the very first in my class. I was the very first in my region even. I did my KAPs in 2021. I didn't know anyone. That's So I was studying and I was just, and meanwhile, it was also in my mind that, oh, I'm going to pay a huge fee. What if I got fail? yes. I wouldn't be able to sit again. If you convert the currency from Pakistan to Australia, it's big money. So people also think that, oh, There's a this, big fear factor. what if I got fail? What if I got fail? So I think you have to clear your mind. You have to be brave and just study hard and get yourself in confidence and just to. And the reward is big. The Australian pharmacists are pretty good. They are the main pillar in community. They are Good earning, good and they are, satisfaction. yeah, and well respected profession, I would say. Yeah. अदनान, थोड़ी सी हम उर्दू में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनको अंग्रेजी में जब बात कर रहे होते हैं ना तो वो समझते हैं कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है। थोड़ा सा हम उर्दू में बात करेंगे कि आपने इंटर्न फार्मेसी की जो जॉब होती है वो होती क्या है, थोड़ा सा बताएंगे क्या आप कैसे काम करते हैं, ऑफिस में डेस्क पे बैठते हैं या खड़े होके काम करते हैं नहीं, या भाग के काम करते हैं, ये क्या है, वो थोड़ा सा जॉब के बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि उनको पता चले ये रीजनल के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये बातें पाकिस्तान के अंदर कि जॉब बिल्कुल। होती क्या है। सबको पता है इंटर्न फार्मासिस्ट एक काम है जो एक फालतू का काम होता है जिसके अंदर शायद पैसे नहीं मिलते। नहीं नहीं और क्यों करना जरूरी है? एक ने कल मुझसे सवाल किया कि यार मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, मैंने कैप्स पास कर लिया, तो मैं इंटर्न क्यों बनूंगा यहाँ के? तो ये बताया जरा कि इंटर्न फार्मासिस्ट में होता क्या है और उससे अ, फायदा क्या है। जी बिल्कुल। तो असल में बात यह है कि आप चाहे जो भी फार्मासिस्ट हो, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर को आप बिल्कुल नहीं जानते। हम्म, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको बिल्कुल एक वो पहले स्टेप से शुरू करना होता है। लेकिन आप फार्मासिस्ट तो होते हो, बट इंटर्नशिप वो है जिसको आप कह लें कि आपकी ट्रेनिंग है। आप यहाँ के रूल्स सीखते हो, आप यहाँ के लॉज सीखते हो, मेडिकेयर क्या है, कंसेशन क्या है, पीबीएस क्या है, सेंट्रल लिंक क्या है। उसके अलावा इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ये कहें कि मैं तो फार्मासिस्ट हूँ और मुझे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट लगा दो, तो टैग मिल जाए। जी जी। ये बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो काम मैं कैसे होता है, खड़े होके काम करते हैं या आप बैठ के काम करते हैं? मैं एज ए फार्मासिस्ट अभी कल जो है ना, मैं अपने फार्मासिस्ट से बात कर रहा था, क्योंकि कल एक वीकेंड का क्लोज दिन था तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जी जी, बहुत रश काफ़ी होता है। ज़्यादा जो है ना ईस्टर से वो पहले हम बेतहाशा लोड होता है काम का। जी जी। जी। तो मैं उनको ये बता रहा था कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, तो हम बैठा करते थे, चेयर रिवॉल्विंग चेयर होती थी, ओके, हमारे नीचे सीट साफ लोग करते काम हैं, ऐसे करते थे। करते हैं, ऐसे करते जी हैं। जी। हमारे नीचे लोग होते थे और वो हमने बस उनको ऑर्डर करना होता था कि भाई ये स्टॉक दे दो, ये फलानी वार्ड में दे दो, क्योंकि मैं एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट था। तो मुझे नहीं था पता कि मतलब एक्टिव रोल ये है कि आपको स्टैंडिंग जॉब, इसकी नेचर ही ऐसी है जॉब की कि ये बिल्कुल स्टैंडिंग है। आप बैठ के ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। व्हेन यू आर गेटिंग पेड, आपको हर घंटे के हिसाब से पे मिल रही है, तो आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि आप अपना मैक्सिमम दो। और ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इफ़ यू आर फिट, अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, और खड़े रहना और एक्सरसाइज इट्स काइंड ऑफ का बिल्कुल। सिटिंग जॉब है, तो मैं उसको लाइक नहीं करूंगा। आपको पता है कि सिटिंग वो थोड़ी सी इस तरह की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि लोगों को नहीं पता ये जॉब की एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आपने खड़े रहना है, और आपने एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट मैं डिस्पेंसिंग करता हूँ एट द फ्रंट, और कस्टमर सर्विस एट द फ्रंट, स्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट आउट, मेड एडवाइजर, वैक्सीनेशन, सर्टिफिकेट फॉर लीव, यानी कि स्टॉक इन, इवन स्टॉक में आप लगाता सर्टिफिकेट फॉर लीव भी हूँ। देते हैं अगर किसी को कहीं जॉब पे अगर वो देना हो कि मैं बीमार हो गया और डॉक्टर के पास से सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फार्मेसी में फार्मासिस्ट देता है, तो वो भी आप कर रहे हैं। वेरी तो गुड। वो भी कर रहे हैं वो क्योंकि थोड़ा सा बताएं वो क्या होता है, क्या उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट क्या आके बोलता है कि मैंने तबीयत खराब। बेसिकली अगर कोई यहाँ पे अगर किसी को लीव चाहिए होती है, तो उनको अपने एम्प्लॉयर को या अपनी कंपनी को दिखाना होता है कि ये वजह थी। तो उसके लिए बेसिकली इलनेस होती है। तो जो भी कोई कस्टमर आता है, पेशेंट आता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या मसला है, यानी कि इलनेस डिस्क्राइब बाय द पर्सन, क्या मसला है। किसी को डायरिया हुआ है, किसी को हेडेक है, बॉडी एक है, फीवर है।
तो वो बताते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि ये आपको कब हुआ, व्हेन डिड द सिम्टम्स फर्स्ट राइज, लाइक तो यस्टरडे या टुडे मॉर्निंग वो बताते हैं। फिर उसके बाद हैव यू टेकन एनी मेडिकेशन, कोई मेडिसिन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी वो सारी एक हिस्ट्री ली जाती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और फिर उसको जो है वो फार्मासिस्ट ऑथोराइज करता है अपने साइन एंड स्टैम्प के साथ कि ये बंदा फार्मेसी में आया और ये मेरी नज़र में जो है अनवेल है और ये आज का काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, लिहाजा इसको आज के दिन छुट्टी दी जाए। तो वो तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो अपने एम्प्लॉयर को जमा करता है, तो उसको सिक डे की पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, अदरवाइज फिर पे नहीं मिलती उनको, जो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सो वो इम्पोर्टेंट सारे फार्मेसिस्ट का रोल जो है, आपने जो अभी छोटी सी बात की है, वो किसी को भी नहीं पता होगा पाकिस्तान के अंदर कि ये काम किसी को फार्मेसिस्ट करते हैं। तभी जी जी समझते हैं कि रिटेल फार्मेसी है, बस चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, ये करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ह्यूज नहीं डिफरेंस इन इन कम्युनिटी फार्मेसी वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक ऐसा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो देखिए, आप ओपियोइड्स लेने हैं, एसेट लेने हैं, तो आप सिंपली जाते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ट्रामाडोल चाहिए फॉर एग्जांपल। बट ट्रामाडोल यहाँ पे इजी एक्सेस नहीं है, फार्मासिस्ट के अलावा, इंटर्न फार्मासिस्ट के अलावा कोई उसको पकड़ नहीं सकता। और हर एक का रिकॉर्ड है, हर पेशेंट का, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है सालों पुरानी, कि वो क्या कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, क्या किस किस मेडिसिन पे है। तो पाकिस्तान तो जो है वो उसकी तो आपकी फार्मेसी में कितने बड़े बड़े सेफ्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी दो बड़ी बड़ी जो होती हैं जिसमें दवाइयां बंद होती हैं, डीडी शेड्यूल 8 मेडिसिन होती है, उनके उनके ताले चाबी किसके पास होते हैं, वो थोड़ा सा सिर्फ बताएं, वो भी फार्मासिस्ट के पता नहीं पास होगा। सिर्फ फार्मासिस्ट के पास, किसी मैनेजर के पास या किसी जो है टेक के पास किसी को एक्सेस नहीं होती। एसिड में जितने भी हमारे ओपियोइड्स हैं, लाइक मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडोन है, उसके अलावा टपेंटाडोल है, लाइक प्लेक्सिया, और ब्यूप्रीनॉर्फिन एंड पैचेस वगैरह, तो जितने भी एसिड के अंदर आते हैं जो दे हैव द पोटेंशियल ऑफ डिपेंडेंस और अब्यूज, उनको एसिड एक सेपरेट लॉक में रखा जाता है और इसकी की सिर्फ फार्मासिस्ट के पास होती हैं। आई एम लकी कि वो मुझे भी की मेरे पास है, आई एम स्टिल एन इंटर्न, लेकिन मेरे ख्याल से इंटर्न को भी वो एक्सेस नहीं होती, ये सिर्फ फार्मेसिस्ट के पास होती है। लेकिन और रीजन उसकी में बड़ी काम करने का फायदा है कि आपको एक्सपीरियंस कितना बड़ा मिल रहा है, ये देखें ना, जो एक्सपीरियंस है वो रीजनल स्टोर्स में, रीजनल कम्युनिटी फार्मेसी में ह्यूज होता है, आपको काम इतना बिल्कुल ज्यादा के बिल्कुल। जाते हैं। इवन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी कोट करना चाहूंगा कि मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो स्टेट नॉमिनेशन पे आए और बड़े सिटीज में उन्होंने कहा कि हमने जाना है, लेकिन वहाँ पे एक तो जो है ओब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और फिर जब उनको कुछ नहीं पता होता तो फिर उनको सफर करना पड़ता है, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लाइक अपने कुलीग से, अच्छा यार ये बंदा या बंदी कहाँ से आ गई, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा 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 बिहेवियर फेस करना पड़ता है, फेस करना लेकिन पड़ता, और काफी डिसहार्ट लोग होते हैं और कहते हैं कि यार पता नहीं क्या है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन उसको बोलते हैं या बुलिंग बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अपना मैक्सिमम देना, और रीजनल का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको लर्निंग ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। आप हर तरह का काम करते हो, हर तरह की लर्निंग है, डिस्पेंसिंग सीख रहे हो आप, वेबस्टर पैकिंग सीख रहे हो आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो। दो बिल्कुल एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और रीजनल में मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, दैट्स गुड। अदनान, आप कोई अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि इस कन्वर्सेशन को हो सकता है आपका कोई कोलीग यूनिवर्सिटी फेलो कोई सुन रहा हो, तो उसको भी कनेक्शन पॉइंट मिलेगा। आपको कुछ बताना चाहोगे, कुछ नाम लेना चाहोगे अपने प्रोफेसर को जिनको याद हो यूनिवर्सिटी के? हाँ, एक्चुअली मैं फिर उनका ही नाम लूंगा कि जिन्होंने, एक्चुअली जब मैं ड्यूरिंग स्टडीज ही सोच रहा था कि मुझे मूव करना है, तो मुझे नहीं था पता। तो एक्चुअली मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे हमारे टीचर रहते थे, सर जिक्रिया, क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाया करते थे हमें। अच्छा। बहुत ही अच्छे इंसान है। और उनसे मैंने एक दफ़ा शेयर की कि सर इस तरह ना जो है, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो आपके सामने ही है कि इस तरह के हालात नहीं है, फार्मासिस्ट को ये अच्छा, यू नो, केमिस्ट माफिया है, रिटेल पे भी ऐसा सच नहीं है, हॉस्पिटल में भी उनको एक्टिव रोल नहीं है, तो आई वांट टू मूव आउट ना। ओके। ओके। यूके का प्लान कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑस्पैप वगैरह देता हूँ या कुछ इस तरह। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं यार, यार हमारे कोलीग हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो मैं उनको आपका उनसे इंटरेक्शन करवा देता हूँ, तो आप उनसे पूछें। तो वो हमारे सीनियर थे, जिशान भाई नाम है, अभी भी कैनबरा में होंगे। तो अच्छा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है
मैं उनके पास गया, फिर उनके सेपरेट, उनका थोड़ा दूर था हॉस्टल, तो वहाँ पे गए, उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार इस तरह होता है। उन्होंने मुझे यही बताया कि स्टेट नॉमिनेशन के रिगार्डिंग ना पॉइंट स्कोर करना होता है, बेसिकली ये टेस्ट होता है, दिस इज अ स्किल असेसमेंट विच इज अ मैंडेटरी। और ये कौन सी ईयर की बात है? ईयर कौन सा ईयर था जब आपको पहली दफा कैप्स था? 2019, I was still studying in final year. 2015? 18, 18, sorry. okay. Yeah, I was in my final year and जब ये मैं डिसाइड कर रहा था। 2018 मेरे साथ एक काम करते हैं, फहीम नाम है उनका, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से 2015 में इधर आ गए थे। और अच्छा उन्होंने क्या अच्छा। किया, उन्होंने नर्सिंग की हाँ और वो चले गए। उनको शायद किसी ने गाइड ही नहीं किया, उनको ये पता था कि कैप्स तो कोई पास कर ही नहीं सकता है, उनको ये पता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि वो नहीं नहीं होगा, ये हाँ नहीं नहीं होगा। होगा, तो उनको कहीं से पता चला मेरे बारे में। 2015 की बात है, सॉरी 2017 की। पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैच खेल रही थी एडिलेड में, हम जी लोग जी। वहाँ खड़े हुए थे, टेस्ट मैच देख रहे थे या ट्रेनिंग देख रहे थे। तो वो वहाँ बराबर में खड़े होके, मैं टीम्स के प्लेयर्स को कुछ देख रहा था, तो वो भी आगे खड़े हो गए। तो ऐसी तरह सही। बराबर में खड़े होकर बात हुई, तो पता चला वो फार्मासिस्ट हैं। तो उनको मेरे बारे में पता चला, कहते हैं आप पाकिस्तानी बैकग्राउंड के फार्मासिस्ट हो ऑस्ट्रेलिया में? मैंने तो आज तक कोई देखा ही नहीं आज तक। तो फिर इस तरह उनको पता चला, थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली, फिर उन्होंने कैप्स किया। अब वो मेरे पास ही इधर कम्बरलैंड में एज ए इंटर्न अपना खत्म कर रहे हैं, इंटर्नशिप खत्म होने वाली है उसकी, फहीम। क्या बात है, तो वो माशा। फैसलाबाद का मुझे याद है, यू आर फ्रॉम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, राइट? हाँ, फैसलाबाद। हाँ, तो वो उसने भी वहीं से पढ़ाई की है। उनके 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 कुछ वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस भी है उनके फैमिली का। हाँ। तो ओके। so if you want to talk to him, maybe chat with him. I will give his number. You may श्योर get श्योर। connection with him. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। और रमजान कैसे जा रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस रोजे रखे जा रहे हैं। और और ईद का क्या प्रोग्राम है? ईद में कुछ करना है यहाँ पे, कहीं एडलेड आओगे, कुछ करोगे? जी, एडिलेड्स में फ्रेंड्स हैं, उनके पास प्लान है, ईद के दिन जो है वो उनके पास आएंगे। ट्राई टू कैच अप, मिलना, फेस टू फेस मिलना, ठीक है, अच्छा श्योर, लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे जो मेडिकल एसोसिएशन है वो, उसको भी अगर थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो दैट्स समथिंग वेरी गुड। जी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ के कोई 450 या उससे ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो उस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, इस स्टेट जी के अंदर, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं, सिर्फ इस स्टेट के अंदर, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सालाना प्रोग्राम्स होते हैं। तो जस्ट ट्राई टू कम देयर। जी। मे बी वन वीकेंड आपको आना पड़े, लेकिन दैट वन वीकेंड कनेक्शन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस कंट्री के अंदर जितने लोग आप जानते हैं, वो आप मेक थिंग्स इजी फॉर यू। सो जी विल सी यू देन, और मे बी ईद पे कभी मिलेंगे, ठीक है? श्योर, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय थैंक योर यू रेस्ट सो ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द वीकेंड। मच। होपफुली आप कल काम कर रहे हो या छुट्टी है कल आपकी? हाँ, मैं कल काम कर रहा हूँ। ओके, चलें सर, एंजॉय एंजॉय, टेक केयर। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।